तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना असेंबली में दरियाए कृष्णा के आबी हुकूक पर मुख्तसर बहस। कृष्णा पर तमाम मंसूबों को मौजूदा हुकूमत की मुद्दत कार में मुकम्मल करने का ऐलान। आदिलाबाद में किसानों के हक में बीआरएस लीडरान का एहतजाज। साबिक वजीर जोकुर अमर न कर लिए गए गिरफ्तार। किसान कपास ऐप खत्म करने का किया मुतालबा। मेदक में भी बल्दियाती ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में खामियों की शिकायत। बीआरएस लीडरान ने डोर टू डोर सर्वे कराने पर दिया जोर। तेलंगाना डीजीपी के सामने माओनवाजों ने डाले हथियार। अहम नक्सली लीडर देवा की भी खुद सुपुर्द की। और पवन कल्याण ने जगतियाल जिले के मंदिर का किया दौरा। टीडीपी की मदद से मजहबी मुकाम की तरक्की के मंसूबों की शुरुआत की। और अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना असेंबली में दरियाए कृष्णा के आबी हुकूक पर मुख्तसर मुद्दत की बहस हुई। इस मौके पर वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कृष्णा के पानी के इस्तेमाल और मुख्तलिफ मनसूबों के सूरत हाल पर तफसीली वजाहत पेश की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिका हुकूमत ने पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा के तास में वाक़ तमाम अहम मनसूबों को तरजीह देते हुए उनका काम मुकम्मल किया जाएगा। చాలా స్పష్టంగా ఈ సభ ద్వారా ఈ రోజు మేము ప్రకటిస్తున్నాం, కృష్ణా బేసిన్ లో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టులు పాలమూరు రంగారెడ్డి గాని, కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, కోయిల్ సాగర్, భీమా, కొడంగల్, నారాయణపేట్, అదే విధంగా ఇట్లు ఉమ్మడి నల్గొండలో ఎస్ఎల్బిసి టనల్, డిండి, అదే విధంగా మరి ఈ ఈ కృష్ణా బేసిన్ లో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టులు మేము హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఈసారి ఈ టర్మ్ లో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదే విధంగా మాటి మాటికి కృష్ణా నదీ జలాల్లో ఓహో మేము అద్భుతాలు చేసినామని చెప్తుంటారు. ఇవన్నీ అంకెలు. भारत राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई पर शदीद एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने हुक्मरान कांग्रेस और स्पीकर पर जानिबदारी के इल्ज़ाम आयद किए हैं। साबिक वजीर और रुकन असेंबली गंगुला कमलाकर ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस दौरान बीआरएस लीडरान ने कहा कि असेंबली को गांधी भवन और वजीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ाती जागीर की तरह चलाया जा रहा है। The main reason behind the boycotting assembly sessions by the BRS party because of the undemocratic procedures followed by the Speaker of the Telangana State Assembly. Moreover, the language used by the CM on the opposition parties is very objectionable, and he is using totally abusive and filthy language. Undemocratic words are being used by the Honorable CM of Telangana, Mr. Revanth Reddy Garu. So on this protest, we want to we requested Speaker to give mic to register our protest, but a Speaker is not in a position to give any chance to speak in the Assembly. And moreover, Speaker has sent the ruling that if you speak against the CM, I'm not going to give you a chance to speak in the Assembly. If such is the method followed by the Speaker, which is totally undemocratic, how can we be in the House? We need to we need to tell the views of the people of Telangana, what are the problems faced by the people of Telangana. And moreover, like Telangana government is not in a position to hear certain issues. And they only wanted to have the positive and only they don't want to hear any negative comments from us. But it's our responsibility as opposition party to bring up all the issues, all the problems faced by the people in the state. But government is not in a position to hear all these things. And moreover,
speaker is not following the few rules and procedures followed by the earlier speakers and earlier governments and earlier procedures. So such way we have a strong objection on it. That's why we boycotted the house for this session. तेलंगाना के वजीर पंचायत राज डीसी तक्का ने असेंबली में कहा कि विकसित भारत जीराम जी कानून गरीबों के खिलाफ है और इससे रियासत पर सालाना तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का माली बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने फंड्स के नाम पर खेल खेलते हुए रियासतों पर इजाफी बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नए कानून में मनरेगा के बरक्स बुनियादी उसूल तब्दील कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ एहतजाज जरूरी है। सीतक्का ने स्पीकर जी प्रसाद और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि असेंबली में इस अहम मसले पर मुख्तसर बहस की इजाजत दी गई। గ్రామీణ ఉపాధి హామీ అనేది 1970 నుంచి స్టార్ట్ అయింది మహారాష్ట్రలో కరువు కాటకాలనప్పుడు. అదే విధంగా ఇందిరాగాంధీ గారు, పివి నరసింహారావు గారు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని జిల్లాల వారీగా రాష్ట్రాల వారీగా చేసి తర్వాత 2004 మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి పని అనేది ఒక దానంగా కాదు హక్కుగా పొందే విధంగా, అదే విధంగా చీప్ లేబర్ను తయారు చేసే ఈ వ్యవస్థ నుంచి వాళ్ళు ఒక రైట్గా పని హక్కును పొందాలని ఈ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది. దాని మీద మీరు కూడా ఇంత అక్కసు వెళ్ళగలుగుతారని నేను అనుకోలేదు. ఇంత పని అరే పేరు అరే నామ్ బదలన కాదు, కామియండి ఫస్ట్ పేరు మార్చుడు వీటి అవి కాదు కదా నేను అనేది. మీరు 125 రోజులు పెంచిర్రు, సంతోషం. ఆ 125 రోజులు निर्मल जिले के खानापुर से खबर है। खानापुर म्यूनसिपलिटी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में संगीन गलतियों की निशानदेही की गई है। ऐसे में अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। कई वोटरों के नाम एक वार्ड के बजाय दूसरे वार्ड में दर्ज कर दिए गए हैं, जिस पर बीआरएस पार्टी के मुकामी कायदीन ने सख्त एतराज़ किया है। बीआरएस लीडरों ने मुतालबा किया कि गलतियों से भरी वोटर लिस्ट की मुकम्मल इस्लाह के बाद ही म्यूनसिपल इंतखाबात कराए जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक याददाश्त भी पेश की। రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియ చాలైన సందర్భంగా ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో గతంలో ఏవైతే 12 వార్డులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా అవే 12 వార్డులు ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే ఒక 2200 చిల్లర ఓట్లు పెరిగినాయి. కానీ ఈ ఓట్లు పెరిగడం मेदक से खबर है। बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र तैयार करदा वोटर्स लिस्ट ड्राफ्ट में मुतअद्दिद खामियां सामने आई हैं। बल्दिया के साबिक चेयरमैन मल्लिकार्जुन घोड़, टाउन कन्वीनर और साबिक काउंसलर ने इस ज़िम्मन में म्यूनसिपल कमिश्नर को एक दरख्वास्त भी पेश की। उनका कहना था कि बाज़ वोटर एक वार्ड के बजाय दूसरे वार्ड में दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि एक ही खानदान के वोटर्स 2 अलग अलग वार्ड्स की फहरिस्तों में तकसीम कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि 2020 की वोटर लिस्ट को ड्राफ्ट बनाने के बजाय दफ्तर में दस्तयाब जानकारी की बुनियाद पर फहरिस्त तैयार करने की वजह से गलतियां पैदा हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि डोर टू डोर सर्वे के जरिए घरों के नंबर और पिछले वार्ड की तकसीम की बुनियाद पर वोटर लिस्ट का दोबारा जायजा लेकर इस्लाहात की जाए। మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది బీఆర్ఎస్ తరఫున. ఆగం హరీబరీగా ముసాయిదా చేశారు. ఓటర్ లిస్టు 32 వార్డుల ఓటర్ లిస్టులు కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ వార్డులో కూడా అది కరెక్ట్గా లేదు. आदिलाबाद में किसानों के मसाइल का हल निकालने का मुतालबा करते हुए बीआरएस पार्टी लीडरों ने एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। आदिलाबाद जिला मरकज़ में एमएलए और एमपी के कैंप ऑफिस के घेराव के दौरान शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी। इस एहतजाज में शरीक साबिक वजीर जोगुरामन्ना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एहतजाज के दौरान पुलिस और पार्टी कारकुनान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई, जिसमें कई कारकुनान जख्मी हो गए। गिरफ्तारी के बाद साबिक वजीर जोगुरामन्ना ने पुलिस स्टेशन में धरना दिया। जोगुरामन्ना ने कहा कि किसानों को दरपेश मसाइल का ठोस हल निकालने की जिम्मेदारी मरकजी और रियासती हुकूमतों पर आयद होती है। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए जो काश्तकारों को बचाने के बजाय पुलिस वाले से हमको मारने लगा बोले तो ये केंद्र राज्य सरकारों का अनफिटनेस है। वो तो ये अनफिट सरकार है दोनों।
अभी काश्तकारों का हमारा मांगे क्या है? हमारा जो सोयाबीन है, काटन है, जो रैतु भरोसा है, जो अभी किसानों आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये साल में 29 लोग 31 लोग मर गए, काश्तकार सुसाइड कर लिए। पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के एक माओनवाज ने डीजीपी तेलंगाना के सामने सरेंडर कर दिया है। सीनियर कमांडर और अहम माओनवाज लीडर बरसे सुक्का उर्फ देवा ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने हथियार डाल दिए। देवा कलिदम CPI माओनवाज की मुसल्लह शाख में बटालियन नंबर 1 का अहम लीडर था, जिसे तंजीम की सबसे खतरनाक यूनिट समझा जाता है। पुलिस के मुताबिक बरसे देवा के साथ 19 अंडरग्राउंड कैडर्स ने भी सरेंडर किया है। इस पेशरफ्त को रियासत में माओनवाज सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सरेंडर करने वाले ग्रुप ने असलहा के ज़खायर भी पुलिस के हवाले किए हैं, जिनमें साबिक सरकर्दा माओनवाज लीडर हिडमा से मुंसलिक हथियार भी शामिल है। This is the surrender of Deva, who has been the commander of the PLJ battalion. The pride, the PLJ battalion has been the pride of the CPI Maoist all through. Now he has surrendered, and about few weeks back we had death of Hidma in an exchange of fire in Andhra, and now Hidma, who has been second only to Hidma as far as the popularity is concerned in the tribal zone of Chhattisgarh, he has also surrendered today. So with this, along with the 20 other cadres, particularly 17 other cadres who are battalion cadres. So with these surrenders, तेलंगाना जागृति के सदर कल्वाकुंटला कविता ने जागृति जन्मबाटा प्रोग्राम के तहत सूर्यापेट जिले के तुंगातिर्ती असेंबली हलके का दौरा किया और मुख्तलिफ मुकामात पर तालीमी, तिब्बी और आपाशी सहूलतों का मुशाहिदा किया। कविता ने मुकामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने तुंगातिर्ती हलके के जाची रेड्डी गोडम और वाकई स्कूल का भी यहाँ पर मुआयना किया। इस मौके पर सावित्रीबाई फूले के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई और उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया गया। कि कविता ने असातिज़ा की हौसला अफजाई की और उन्हें तहनीत पेश की। तालिबात में चॉकलेट्स तकसीम किए गए। बाद में कविता ने SRSP मरहला 2 के तहत तुंगातिर्ती और सूर्यापेट असेंबली हलकों को पानी फराहम करने वाली नहर का मुआयना भी किया। उन्होंने वेलुगोपल्ली गांव में वाक़े तालाब का भी जायजा लिया। బాట కార్యక్రమంలో భాగంగా సూర్యాపేట జిల్లాకు రావడం జరిగింది। మరి ప్రత్యేకించి సూర్యాపేట జిల్లాలో తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు తుంగతుర్తి హెడ్ క్వార్టర్కి వచ్చినాం। ఇక్కడ తుంగతుర్తి హెడ్ క్వార్టర్లో 30 పడకల హాస్పిటల్ గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది। మరి ఆ 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి मेदक जिले के घनपुर से खबर है। आज यहां नए डाइट कॉलेज की इमारत के लिए भूमि पूजा की रस्म मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली माइनमपल्ली रोहित राव और मेदक के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव शरीक रहे। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि टीचर्स की मयारी तरबियत के जरिए समाजी तरक्की मुमकिन है और नए तालीमी साल के आगाज तक क्लासेस के लिए इमारत बना दी जाएगी। रुकन असेंबली ने बताया कि 11 करोड़ रुपए की लागत से डाइट कॉलेज की इमारत तामीर की जा रही है और इसके जरिए मेदक जिले को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाया जाएगा। నేను గెలవగానే ఒకటే విషయం చెప్పిన, మనకు రెండు ముఖ్యమైనవి, ఒకటి విద్య, ఒకటి వైద్యం. మరి విద్యా వైద్యంలో భాగంగా మరి గత 10 ఏళ్ళు మనకు మాయమాటలు, మోసపు మాటలు చెప్పడం జరిగింది। మెడికల్ కాలేజ్ అంటారు, కొబ్బరికాయలు కొట్టాలా ఆగమై। मशहूर दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ ख़त्म हो चुका है। यहाँ 31 दिसंबर से उर्स शरीफ का आगाज़ अमल में आया था। उर्स शरीफ के इख्तिताम पर रियासती वक्फ बोर्ड अहदेदारों CEO असदुल्ला और चेयरमैन असमतुल्ला की हिदायत पर दरगाह बड़ा पहाड़ मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड अहदेदारों में वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर सद्दाम हुसैन, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जमाल याकूब बेग, मुजाविर गौस मौजूद थे। दरगाह बड़ा पहाड़ मस्जिद के इमाम ने कसरत से ज़ायरीन और रियासती वक्फ बोर्ड अहदेदारों के लिए दुआओं का एहतमाम किया। दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के करीब हादसा पेश आया है। एक ट्रैवल बस ड्राइवर की गलती की वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ। बस 2 दुकानों में दाखिल हो गई। हालांकि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान हुआ है, जिस पर दुकानदारों ने
पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस सिलसिले में मकामी वार्ड मेंबर मोहम्मद सलीम ने कहा कि कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन रियासती वक्फ बोर्ड ने यहां दरगाह बड़ा पहाड़ ज़ायरीन और अवाम की सहूलियात के खातिर कोई तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया। यहाँ पर एक बस का हादसा हुआ, रात में 3 बजे बस सेल हो गई और 2 दुकानें डैमेज हो गए। 2 दुकानों का माल भी ख़राब होगा, कम से कम 2-2.5 लाख का नुकसान होगा। तो इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर रोडें सड़कें सही नहीं है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। वक्फ बोर्ड के लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और पैसे ले जा रहे हैं, यहाँ रास्ते सही नहीं है। कुमरम भीम आसिफाबाद से खबर है। नेशनल रोड सेफ्टी महीने के तहत आगाही प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। जिला आसिफाबाद में पुलिस की निगरानी में आज मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया ताकि अवाम में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही पैदा की जा सके। इस रैली का आगाज जिला पुलिस दफ्तर से हुआ और यह सब जेल, पुलिस स्टेशन, KB चौक और बस स्टैंड के रास्ते से होते हुए वापस पुलिस स्टेशन तक जारी रही। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क हादसे की रोकथाम में हर शहरी की जिम्मेदारी अहम है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हादसा को नुमायां हद तक कम कर सकती है। कामारेड्डी पुलिस दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जिला पुलिस ने आज एक ही दिन में साबका जुराइम पेशा अफराद और मुश्तबा अफराद की तफसीली जाँच पड़ताल की है। जिला SP M राजेश चंद्रा ने खुद मुख्तलिफ गाँव देहातों में जाकर मुश्तबा अफराद का मुआयना किया और उनके साबका जुराइम, मौजूदा तर्ज ज़िंदगी और बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में मालूमात हासिल की। जहाँ आज की दुनिया में तमाम सहूलियात मिलने के बावजूद भी मंजिल को पाना मुश्किल लगता है, वहीं एक मासूर नौजवान ने अपनी मेहनत, तालीम और सलाहियत के बल पर कामयाबी की ऐसी मिसाल कायम की जो कई नौजवानों के लिए बाइस तहरीक बन गई है। हनुमाकुंडा के नौजवान मोहम्मद अहमद ने 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 सरकारी नौकरियां हासिल की और अब मेदक ज़िले के ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से अवामी खिदमात में मसरूफ़ है। पेश मेदक से मुनसिफ TV के नुमाइंदे हामिद की एक ख़ास रिपोर्ट। ये हैं मोहम्मद अहमद, याकूब पाशा और शमीमा सुल्ताना के बड़े बेटे, जिनका ताल्लुक हनमकुंडा ज़िले के दामर मंडल से है। एक आंख से माजूर अहमद के दिल में जज्बा खिदमत था और सरकारी मुलाजिमत हासिल करने का एक मजबूत ख्वाब। अहमद की इब्तिदाई तालीम मुलगू ज़िले में हुई, इंटरमीडिएट हनमकुंडा में, और साल 2015 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। साल 2016 में सरकारी मुलाजिमतों के एलामिये के बाद अहमद महकमा सेहत आम्मा और म्यूनसिपल टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से मुंतखब हुए और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी खिदमत अंजाम दी। यही नहीं रुके, ग्रुप 2 इम्तिहान में शिरकत करते हुए अहमद ने असिस्टेंट BC वेलफेयर ऑफिसर की जायदाद भी अपने नाम कर ली। प्रिपरेशन के लिए 2 साल में लॉन्ग लीव लेके प्रिपरेशन हुआ था। स्टार्टिंग में मैं ओन नोट्स लिख लेते हुए, मैं तेलुगु मीडियम में हुआ तो मेरा बेसिकली तेलुगु मीडियम है, तो तेलुगु मीडियम में ही तेलुगु में ही नोट्स बना लेते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। बीच में मेरे को ऐसा टेलीग्राम में एक वेंकट अन्ना बोल के ऐसा मुलाकात हुए थे। उन्होंने हमारे दोस्त साई कृष्णा बोल के, ये हमला तीनों मिल के प्रिपरेशन करते थे ग्रुप के जैसा बना लेके हमला। जो हमला इसमें वेंकट अन्ना बहुत मदद करते थे, क्या कैसा प्रिपेयर करना, मैप पेंटिंग कैसा करना, ड्राइंग कैसा वो करना बोल के। कामयाबी का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद अहमद ने ग्रुप 1 इम्तिहान की सख्त तैयारी की, जहां सरकारी स्कूल के एक उस्ताद वेंकटेश्वर, महकमा सेहत में खिदमत अंजाम देने वाले साई कृष्णा ने उनकी भरपूर मदद की, जबकि ऑनलाइन क्लासेस ने भी तैयारी में अहम किरदार अदा किया। नतीजा ये निकला कि अहमद ने ग्रुप 1 में 216वां रैंक हासिल किया और मेदक जिले में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज हो गए और यहाँ पर अब वो डिप्टी कलेक्टर ट्रेनिंग के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोज को 13 से 14 घंटे तक बोले तो रात में ही पढ़ता था मैं। उसमें ही मेरे को ग्रुप 1 मतलब अच्छा एग्जाम हमारा लास्ट ईयर हुआ था, उसमें ही मैं ग्रुप 1 आया था। अहमद की इस कामयाबी के पीछे वालिद की कुर्बानी भी शामिल है, जिन्होंने सन 98 में तेलंगाना से सऊदी अरब जाकर अपने खानदान की रोजी रोटी और बच्चों की तालीम का इंतजाम किया। आज वही अहमद डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से मेदक जिले में आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हौसला मजबूत हो तो माजूरी भी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनती। तमाम आज़ाद सलामत रहने के बावजूद बहुत से नौजवान पढ़ने के लिए
2.5 लाख बहाने बनाते हैं, लेकिन पैदाइशी तौर पर एक आंख से नाबीना नौजवान ने 3 सरकारी नौकरियां हासिल करके सबके लिए एक मिसाल कायम कर दी। इनकी तालीम और मुलाजिमत का सफ़र देखने से ये बात वाज़ेह होती है कि बहुत से लोगों के लिए एक मिसाली शख्सियत बन चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूं हामिद, मुंसिफ टीवी न्यूज़ मेदक। हैदराबाद में आज ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने असेंबली के करीब एहतजाज किया और मुतालबा फौरी तौर पर पूरे करने की हुकूमत से अपील की। तमाम मुतालिबात जो किए गए थे इलेक्शन से पहले मुजाहिरे में शामिल ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि प्राइवेट ऐप कंपनियों के मुकाबले के लिए सरकारी सतह पर एक निजी ऐप मुतारिफ कराई जाए। ऑटो ड्राइवर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि खानगी ऐप प्लेटफॉर्म्स की इजारादारी के बायस उनकी आमदनी में नुमाया कमी आई है और कमीशन के नाम पर उनसे भारी रकम वसूल की जा रही है। 3 నెలల క్రితమే పార్లమెంట్ ఎన్నికలప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ముందు మేము వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ల సమస్యలు పరిష్కరిస్తాము, ఒక ఓలా ఊబర్ రాపిడోకు వ్యతిరేకంగా ఒక యాప్ తీసుకొస్తామని। हैदराबाद के कसारा में लूट की कोशिश की गई है। नाक्रम सत्यनारायण कॉलोनी में ज्वेलर्स की दुकान में जेवरात लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर दुकान में गाहक बनकर दाखिल हुए और अचानक असलहा दिखाकर दुकानदार संदीप को धमकाने लगे, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक दुकानदार की हिम्मत और मज़ाहमत के बायस मुल्जिमान घबरा कर मौके से फरार हो गए और असलहा वहीं छोड़ गए, जो बाद में नकली साबित हुआ। इतला मिलते ही कसारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और वाक़े की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश तेज कर दी है। At 5 p.m. evening hours at near Rampalli X Roads, 2 unknown offenders entered into a shop by name Balaji Jewelers and tried to rob the jewelry items. Meanwhile, in this attempt, they have attacked the shop owner. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना के जिला जगतियाल में वाक़ मशहूर मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर से अपनी गहरी अक़ीदत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें नई जिंदगी यहाँ से मिली है। पवन कल्याण ने बताया कि माजी में एक हादसे के दौरान उन्हें हाई टेंशन वायर लग गया था और आज तक उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो इस हादसे में जिंदा कैसे बचे। इस वाक़े के बाद उन्होंने बताया कि उनका यहाँ पर ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इस दौरान पवन कल्याण और टीडीपी के चेयरमैन BR नायडू ने मंदिर के दर्शन किए, जहां मंदिर के पुजारियों ने रिवायती एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंदिर की तरक्की के लिए तिरुपति तिरुमला संस्थानम की जानिब से मंजूर शुदा 35 करोड़ 19 लाख रुपए के मंसूबों का भी आगाज किया गया। చాలాసార్లు నాకు కొండగట్టు పునర్జన్మనిచ్చిందంటే దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి మన సత్యం గారు. సో నాకున్న సన్నిహితులు స్నేహితులు అందరూ ఉండే మధ్యలో మేము ఇక్కడికి వచ్చి శ్రవణ్ దాసు। हैदराबाद से खबर है, जिला SP अखिल महाजन की निगरानी में कबालियों की मदद का काम जारी है। बाजार के आसपास के इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंप और कंबलों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कैंप में मुख्तलिफ इलाकों के 200 कबायली अफराद ने हिस्सा लिया। తాండాలో కూడా ఒక పర్సన్ దగ్గర చాలా గాంజా దొరికింది, ఐ థింక్ 2-3 నెలల క్రితం. సో అట్లయినా అంటే చాలా మంది వాళ్ళ భూమిలో పండిస్తారు. ఇప్పుడు భూమిలో పండించే వల్ల వాళ్ళకి రైతు భరోసా క్యాన్సిల్ అయింది. దాదాపు లాస్ట్ చివరి సంవత్సరం 2025లో అట్లా 100 फार्मर्स दी 100। तेलंगाना न्यूज में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।